Okay, so now we go to the other book, The Game of Life, and starting a fresh new chapter there, which is called as The Power of the Word. आपके शब्द कहते हैं ना, your word makes your world. So your word does make your world. So that is how it is like. Okay, so let's just read it. Who's reading today? Ritu Kukreja, Ritu ji. Good morning. thank you so much. I'm so Thank grateful. you. I'm rolling in the celebration of life. है Today, ना? birthday, and this was the affirmation you gave me last year. Uh-huh. And I've been writing every single day. I'm rolling in the celebration of life. How cool is that? You. It's The a power. birthday, ma'am. मैंने कैप्चर कर लिया इस वाले सेंटेंस को गाइस सब लोग आई एम रोलिंग इन द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ Ma'am, Thank it's Ritu ma'am's birthday also. ओ रियली ओ हो रितु जी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इतनी प्यारी सी गर्ल है ये बहुत ही प्यारी आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो और होती रहे होती रहे होती रहे और आप लोगों की जिंदगी टच करते रहे आपका सप्लाई चलता रहे और साथ साथ आप you add a difference and make a difference to the world also because you have a golden heart. I know, ma'am. God is my supply, and the next is Yes, Deepti. yes. And you're basking in the sunshine of that supply. Thank you. Wonderful. can you Let's repeat? start reading. The I'm power sorry. by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. A person knowing the power of the word becomes very careful of his conversation. He has only to watch the reaction of his words to know that they do not return void. Through his spoken word, man is continually making laws for himself. I knew a man who said, I always miss a car. It invariably pulls out just as I arrive. His daughter said, I always catch a car. It's sure to come just as I get there. This occurred for years. Each had made a separate law for himself, one of failure, one of success. This is the psychology of superstitions. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Luke 12:32. Yeah. So यहाँ पे हमने पढ़ा है, this is called the power of your word. आप वर्ड से बोलते हो मुझे ये एक लाइन बहुत अच्छी लगी है जिसमें लिखा हुआ है योर वर्ड्स मेक अ लॉ मतलब लॉज क्या होते हैं लॉ नियम स्टैंडर्ड्स है ना योर वर्ड्स मेक योर लॉ यू मेक योर ओन लॉ इफ यू कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी एवरीथिंग विल ऑलवेज वर्क आउट फॉर यू बिकॉज रेपिटिशन और दिमाग में जो बिलीफ हम प्रोमिनेंटली होल्ड करते हैं दैट बिकम्स लाइक अ परमानेंट टैटू in the subconscious mind. We want to make this a permanent tattoo that everything is always working out for me. Money is constantly flowing into my life with ease and joy. I am enjoying the best of health all the time, physically, mentally, and emotionally. I am constantly growing and successful in all areas. है ना? My body weight is always perfect no matter what I eat. है ना मतलब मेरा वजन बिल्कुल वैसा ही रहता है सेम रहता है चाहे मैं कितना भी खाऊं मेरे बाल बहुत हेल्दी लगते हैं और मेरी लुक्स को एनहांस करते हैं मेरी स्किन हमेशा टाइट क्लीन क्लियर ग्लोइंग रहती है आई एम ऑलवेज पल्सेटिंग विथ लॉट ऑफ एनर्जी है ना अगर आपके डोमिनेंट थॉट्स इस तरह के हैं तो ये परमानेंट टैटू कर देंगे आपके सबकॉन्शियस दिमाग में और सबकॉन्शियस दिमाग में जो जो बिलीव्स होते हैं वो लॉ बन जाता है जो हमने आज पढ़ा है ये लॉ बन गया है लॉ क्या होता है सन राइजेस इन द मॉर्निंग सेट्स इन द इवनिंग धरती में ग्रेविटेशनल पुल होता है ये सब लॉ है ना ये नियम है नेचर के नियम है वैसे ये भी नेचर का नियम है ऑथर ने बोला है इसमें है ना इसमें लिखा हुआ है दैट योर वर्ड्स बिकम योर लॉ तो लॉ सो देन इसमें दोनों फादर एंड डॉटर
दोनों का एग्जाम्पल, फादर हमेशा बोलता था, मैं कभी कार मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जाते होंगे ना जहाँ पे भी, तो कह रहा था कि मैं मेरी गाड़ी हमेशा छूट जाती है, मैं गाड़ी कभी पकड़ ही नहीं पाता, मतलब जिस कार से उनको जाना होता है जहाँ पे भी जाते हैं ये लोग। फादर का ये वाला बिलीव था दैट आई एम नेवर एबल टू कैच अ कार, मैं जाता हूँ उसके पहले गाड़ी मिस हो जाती है मेरी। बेटी दूसरा बोलती थी, बेटी बोलती थी कि मैं हमेशा गाड़ी कैच कर पाती हूँ, और मैं जब भी आती हूँ मेरे आने के बाद ही गाड़ी आती है, तो मैं हमेशा गाड़ी से जा पाती हूँ। तो अब देखो फादर एंड डॉटर के डोमिनेंट थॉट में, उनके माइंडसेट में कितना फर्क था, है ना। तो ये थॉट्स ही तो, ये वर्ड्स हमारे माइंडसेट बनाते। वो बोलते थे मेरे तो हमेशा छूट जाती है, मैं कितनी भी जल्दी जाऊं मेरी गाड़ी छूट जाती है। बेटी बोलती थी कि मैं हमेशा जाती हूँ, मैं कितनी भी टाइम पहुंचू उसके बाद ही गाड़ी आती है, एंड आई ऑलवेज कैच द कार, आई ऑलवेज मैनेज टू गो। सो इस तरह से दिस अकर्ड फॉर इयर्स इयर्स, बाप ऐसे बोलता था, बेटी ऐसे बोलती थी। ओके, सो दोनों ने अपने लिए, इसमें लिखा हुआ है जैसे फ्लोरेंस कॉवेल ने, दोनों ने अपने लिए अलग अलग लॉ बना लिए थे। फादर का फेलियर वाला लॉ था कि मैं कितनी भी जल्दी जाऊं गाड़ी मिस हो जाती है मेरी, है ना। बेटी ये बोलती थी मैं कितना भी लेट जाऊं मैं हमेशा गाड़ी पकड़ पाती हूँ, आई ऑलवेज मैनेज टू कैच द कार। तो इस तरह से दोनों ने अपने अपने लिए ऑपोजिट लॉ बनाए हुए थे। फादर कुछ और सोचता था, उनका उनका टैटू ही कुछ और था, इन्होंने कुछ और टैटू बनाया हुआ था, है ना। इस तरह से एक फेलियर का लॉ था और एक सक्सेस का लॉ था। लाइफ में दो ही तो लॉ होते हैं, और कोई लॉ नहीं होता। ये वही वाली बात है ना, 2 रुपए से या तो आप सिगरेट खरीदो या 2 रुपए से आप फ्रूट खरीदो। तो अब दोनों लॉ है ना। तो दोनों इस तरह से, सक्सेसफुल कौन होगा, एक फेलियर है एक सक्सेस है। तो दो ही तरह के रास्ते होते हैं जिंदगी में, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और इसके अलावा कोई नहीं चार्ज होता, है ना। दो तरह के चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से इट सेज दैट इट इज योर फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। भगवान तो चाहते हैं, बाइबल का कोट है ये, भगवान चाहते हैं आपको बहुत बरकत मिले, बहुत खुशियों की बारिश हो आपकी जिंदगी में, बट the chosen words will always cause us success or failure. So we have to decide कि हमारे सबकॉन्शियस में हमको कौन से वर्ड्स रिपीट करके परमानेंट टैटूज बनाने हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ बन जाएगा। हाँ जी। The horseshoe or rabbit's foot contains no power, but man's spoken word and belief that it will bring him good luck creates expectancy in the subconscious mind and attracts a lucky situation. I find, however, this will not work when man has advanced spiritually and knows a higher law. One cannot turn back and must put away graven images. For example, 2 men in my class had great success in business for several months when suddenly everything went to smash. We tried to analyze the situation, and I found instead of making their affirmations and looking to God for success and prosperity, they had each bought a lucky monkey. I said, "Oh, I see you have been trusting in the lucky monkeys instead of God. Put away the lucky monkeys and call on the law of forgiveness, for man has power to forgive or neutralize his mistakes." They decided to throw the lucky monkeys down a coal hole, and all went well again. This does not mean, however, that one should throw away every lucky ornament or horseshoe about the house, but he must recognize that the power back of it is the one and only power, God, and that the object simply gives him a feeling of expectancy. ओके, तो यहाँ पे जो जितने भी सुपरस्टिशंस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है फ्लोरेंस कॉवल्शन में, बिकॉज इंडिया में रह के हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लकी चार्म बोलते हैं, दैट ये मेरा लकी चार्म है, ये अंगूठी पहनने से मेरे अंदर लक आ जाता है, मेरे घर के सामने हैप्पी मैन वो कौन सा फ्रॉग और वो सब रखा होता है वो मेरा लकी चार्म है, ये मेरा लकी चार्म है, वो वाला कौन सी होता है ना, दैट कैट्स आई और समथिंग लाइक दैट, जो हम लटका के रखते हैं, कभी कभी पहन के रखते हैं और बोलते हैं कि ये ना लकी चार्म है, ये लकी चार्म है।
सो वो कहते हैं ये सब अपने दिमाग में होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हॉर्स शू अपने घर के सामने लगाते हैं, उनको लगता है कि हॉर्स शू बहुत लकी चार्म लेके आता है, लेकिन फ्लोरेंस कॉवल्शन बोलती हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है। इसका मतलब है दैट क्योंकि आप ये बिलीव करते हो कि वो हॉर्स शू आपके लिए लक लेके आएगा, तो आपके दिमाग की बिलीफ के कारण वो हो रहा है। हॉर्स शू में दम नहीं है, हमारे दिमाग में दम है। मतलब हमारे दिमाग ने मान लिया है ना, सबकॉन्शियस ने माइंड मान लिया है कि अगर ये हॉर्स शू मेरे घर में रहेगा तो इट विल ब्रिंग मी अ ह्यूज लक, है ना। सो मेनी पीपल डू ऑल दीज थिंग्स ओनली कि ये कर लो तो लकी हो जाएगा, ऐसा कर लो तो लकी हो जाएगा। तो कहती है शी इज रबिशिंग ऑल ऑफ दैट, द ऑथर हैज रिटन दैट वो सारी चीजें फालतू की बातें होती है, वो सब आपके दिमाग में होता है। जो डिवाइन है, ब्रह्मांड है, उसकी पावर को अपने अंदर एक्टिवेट करो, रादर देन वो चीजें जैसे इन लोगों ने भी जो बिजनेस किया था, अब इनका बिजनेस नहीं चल रहा था तो इन्होंने क्या लकी मंकी खरीद लिया था, वट एवर दैट मीन्स, ओके। तो लकी मंकी खरीद के अपने ऑफिस में डाला हुआ था। फिर ये गए फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास कि किसी भी बात से बात किया होगा बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने कहा पहले तो ये सब हटाओ, इन सब से कुछ नहीं होता, अपना माइंडसेट चेंज करो। डिवाइन आपके अंदर है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी एफर्मेशन डालो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये विश्वास दिलाओ दैट योर बिजनेस इज सक्सेसफुल एंड डिवाइन पावर इज फ्लोइंग थ्रू यू एंड ब्लेसिंग योर बिजनेस। एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइनली उन्होंने दे डिसाइडेड टू थ्रो द लकी मंकीज डाउन द कोल होल। फिर उन्होंने उसको, कोल होल मतलब जहां जल जाता है ना, जहां भट्टी 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 बोलते हैं ना उसको, फर्नेस, वहां पे उन्होंने जाके फेंक दिया अपने लकी मंकीज को। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल करना है तो मुझे, हमको अपने वर्ड्स को चेंज, जब तक आप पावर, किसी, कई लोग होते हैं, मुझे इसके साथ रिश्ता अच्छा करना है, आप मेरे लिए वो कर दो, आप कुछ प्रेयर कर दो, या आप कुछ वो कर दो, या आप ये कर दो, है ना। अब रिश्ता अपना अच्छा करना है, दूसरा इंसान क्या करेगा उसमें, कुछ टाइम अच्छा हो जाएगा, उसके बाद वापस बुरा होना शुरू हो जाएगा वो, है ना। बिकॉज दैट पर्सन में भी कुछ एनर्जी हीलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है, कुछ टाइम तक तो वो पर्सन एफर्मेशन कर पाएगा उसके लिए या प्रेयर्स भेज पाएगा, बाद में वो इंसान क्यों, जिंदगी भर उसके तो 50 काम ऑन है ना, वो क्यों आपकी तरफ डिवाइन हीलिंग। डिवाइन हीलिंग तो खुद के अंदर, रिलेशनशिप हीलिंग, ये हीलिंग वो हीलिंग, वो तो हमारे अंदर ये पावर होती है। कोई और हमारे लिए करता है, ये डिस्टॉर्टेड व्यूज होते हैं कि यू अप्रोचिंग समवन एल्स, कैन यू डू दिस फॉर मी, है ना। इवेंचुअली माइंडसेट तो अपना, जब तक अपना खुद का सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपकी जिंदगी में कैसे आएगी, वो भी तो करना पड़ेगा। आपने देखा ना, कल फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने यही बोला है। तो अगर अगर पूनम ने मुझे बोला आप मेरे लिए एफर्मेशन लिखो, तो मैंने भी तो उनके लिए लिखी है ना। अगर सारिका ने मुझे बोला है तो मैंने भी तो उनके लिए लिखी है ना। ये नहीं था उसमें कि आप मुझे हील करो, ये आप मुझे हील करो, मैं भी आपको कर रही हूँ। इट इज लाइक दैट। मैंने मोहित जी के लिए लिखी तो मोहित जी भी मेरे लिए करेंगे ना। कल का गेम यही था, यही वाला गेम था। इट इज नॉट दैट आई एम ओनली राइटिंग, दैट अदर पर्सन विल ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग फॉर मी। अगर मैंने उनको, सपोज किसी ने मुझे हेल्थ की दी है एफर्मेशन कि उनकी हेल्थ में चैलेंज है, तो वो भी मेरी हेल्थ के लिए करेंगे। देर इज नथिंग लाइक ओनली आई एम हीलिंग द अदर पर्सन इज ऑल्सो हीलिंग मी साइमल्टेनियसली। उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज बोली थी कि आप सिर्फ टेक नहीं कर सकते, आपको गिव भी करना पड़ेगा, है ना। यही तो गेम था कल वाला जो असाइनमेंट था। तो इसी तरीके से हम हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने में सारा जोर डाल दो, रादर देन फिक्सिंग थिंग्स। ये अंगूठी खरीद लो, वो पर्ल खरीदो, वहां से ये पहन के ये पहन लो, वो मेरे लिए लकी, वो मेरे लिए अनलकी, ये फला ये ढिमका, फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं हम लोग। घर में ये रख दो, उस कॉर्नर में ये रख दो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपने घर में दीवारें तोड़वाई हैं, अपने टॉयलेट में कुछ कुछ लगवाया है, अपने एंट्रेंस पे कुछ कुछ लगवाया है, अपना वो कर रहा है। उनके घर में न बरकत है, न चैन है, न हार्मनी है, न पीस है, न फ्लोइंग ऑफ द मनी है। आफ्टर ऑल द चेंजेस, लाखों रुपए खर्च करके भी आज वो हाल है। कोई फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं की थी ना। So this is how it actually works. Don't try to fix your outside environment. Fix yourself, the subconscious mind, by the power of the chosen words and your self-talk, auto suggestion जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं,
उन चीजों से चेंज आएगा, है ना। वास्तु में कुछ कुछ करा लो। हमें भी बहुत लोग बोलते हैं आपका टॉयलेट ना गलत जगह पे है और वो गलत जगह पे है, ऐसा है। हमारे घर में तो शुरू से ग्रोथ इन सक्सेस है, और अब तो 2020 से तो नॉन स्टॉप देयर इज अ लॉट ऑफ गुड जोन। I have constantly grown in my life in all areas because of the change in the subconscious mind. Not because बाथरूम अभी भी कुछ बाथरूम को हमने कुछ नहीं कराया, वो अभी भी मेरे बेडरूम के बाथरूम के बारे में बोलते हैं, डायरेक्शन ये वो फलान ढिमका, कुछ नहीं कराया मैंने। एवरीबडी सेज दैट आपका इतना बड़ा बेडरूम में मिरर लगा हुआ है, वॉल मिरर है हमारा बहुत बड़ा सा, तो इतना बड़ा वॉल मिरर लगा हुआ है, इसको रात में इसके ऊपर चादर डाल के सोया करो आप लोग, मतलब मिरर के ऊपर चादर, मिरर नहीं खुला नहीं रहना चाहिए, ऐसे घर में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। कैन यू बिलीव इट? एंड नॉट वन पर्सन, मल्टीपल पीपल हैव टोल्ड। सो मुझे ये सारी बातें अभी याद आ रही है बिकॉज हम यही वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि उनका बिजनेस चल नहीं रहा था, तो उन्होंने ये मंकी वो वास्तु, ये दिस वो अंगूठी वो फलान ढिमका, ये सब किया हुआ था। फ्लोरेंस कॉवलशिट बोलती सब हटाओ ये, पहले तो है ना ड्रामा, फिर उसके बाद अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो बहुत अच्छा माइंडसेट डेवलप करके, दैट माय बिजनेस इज कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग, by the divine order, divine right, and right people are coming, my and taking the business forward. I have amazing relationship, whatever is in my right is coming to me easily and joyfully. इस तरह की चीजें अगर आप लगातार बार बार बोलोगे, जो उन्होंने बताया है कि 100 बार लिखो वो वाली चीज, दैट वे बिजनेस इज फ्लैशिंग एंड थ्राइविंग, क्यों नहीं करेगा? 7 दिन के लिए लिख के देखो। कठिन कठिन असाइनमेंट्स दे रही हैं ये हमको, लेकिन हमारे लिए ही तो है वो। उनका क्या है, अगर जब मैं भी आपको बोलती हूँ आप ये करो वो करो, तो इट्स नॉट दैट आई एम गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, आई जस्ट वांट योर लाइफ टू बी वेरी हैप्पी, है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पे सिखाया है कि फालतू की चीजों में ध्यान मत दो, इधर जाना उधर जाना, पंडितों को दिखाना, ये उपाय वो उपाय। उपाय आप ही हो, बस अपने अंदर से निकालो उसको, अपने अंदर को स्विच ऑन करने की जरूरत है सबकॉन्शियस माइंड का। अपने आप वो स्विच ऑन, क्या, यूनिवर्स की फ्लो ऑफ एनर्जी आपके अंदर, उसका स्विच ऑन करके। और वो तभी होगा जब आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में, हैप्पी फ्रीक्वेंसी, ब्लेसिंग फ्रीक्वेंसी में रहोगे, यूनिवर्स की पावर को पहचानोगे, सूरज देवता को प्रणाम करोगे, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट होगे, बहुत ग्रैटिट्यूड में रहोगे, लोगों को ब्लेस करोगे, लव वर्ड आप बहुत यूज करोगे, डिसिप्लिन लाओगे अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे, अच्छा खाना खा के रोज सुबह वर्जिश करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करने जाओगे, अच्छे से दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो करोगे, बहुत ग्रैटिट्यूड और लव में रहोगे, अच्छी अच्छी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे। ये तरीका होता है सेल्फ ग्रोथ करने का, है ना। इट इज नॉट लाखों रुपए वास्तु में खर्च कर दिए फालतू की चीजों में, इधर उधर उधर उधर। अब घर को तोड़ने की क्या जरूरत है, अब बन गया बस हो गया, है ना। उसी घर में इतना प्यार दो कि सब ठीक हो जाएगा, isn't it? Give a lot of love to that. So that's what वो बता रही है यहाँ पे, कि पावर सिर्फ एक है। पावर हैप्पी मैन की स्टैचू में नहीं है, पावर उस स्टैचू में नहीं है, पावर इसमें नहीं है, पावर सिर्फ एक चीज में है, विच इज द पावर ऑफ गॉड। एंड द ऑब्जेक्ट सिंपली गिव्स हिम अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई पावर नहीं है, पावर हमारे ही मन में है, तो अपने ऊपर वर्क करें, है ना। यही तो हमको सिखा रही है ये, कि पावर ऑफ वर्ड्स इतने पावरफुल होती है, वर्ड्स बोल बोल के आप अपनी किस्मत को पलट सकते हो। सो दैट इज हाउ इट इज। डू वांट टू रीड अ कपल ऑफ मोर पैराग्राफ्स, रितु जी? I was with a friend one day who was in deep despair. In crossing the street, she picked up a horseshoe. Immediately, she was filled with joy and hope. She said God had sent her the horseshoe in order to keep up her courage. It was indeed, at that moment, about the only thing that could have registered in her consciousness. Her hope became faith, and she ultimately made a wonderful demonstration. I wish to make the point clear that the men previously mentioned were depending on the monkeys alone, while this woman recognized the power back of the horseshoe. I know in my own case, it took a long while to get out of a belief that a certain thing brought disappointment. If the thing happened, disappointment invariably followed. I found the only way I could make a change in the subconscious was by asserting,
there are not two powers. There is only one power, God. Therefore, there are no disappointments, and this thing means a happy surprise. I noticed a change at once, and happy surprises commenced coming my way. Yeah. Thank you so much. This is all we'll be reading today and wish you a very, very happy birthday to you from all of us on the YouTube जो connect नहीं कर पा रहे हैं directly, indirectly connected हैं, लेकिन they also have a beautiful heart and I'm sure they would want to be wishing you a very happy birthday. Thank you so And much. from Thank you, ma'am. everyone on all the groups. Thank you, Salma family. And may really this year bring the best in your life. ओके सो अबाउट दिस, ये पैराग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे बहुत पावरफुली लिखा हुआ है, चाहे वो हॉर्सशू हो, चाहे वो मंकी हो, जो भी चीज उन लोगों ने करी थी कि ताकि उनका बिजनेस चल पड़े, उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। तो फ्लोरेंस कॉवल्शन कहती हैं कि मेरी जिंदगी में भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस होता था बार बार, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती थी, है ना। कभी भी होता है हमारे एनवायरनमेंट में, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है या कोई ऐसी चीज होती है और वो पैटर्न की तरह हो रही है, तो आपको बार बार बुरा लगता है, फिर आपको लगता है ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है और दिस पर्सन ये मेरी लाइफ में इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वैसे ही ऑथर बोल रही है कि उनकी जिंदगी में भी ऐसी कोई चीज थी जो बार बार उनको पुल डाउन करती थी, बार बार उनको डिसअपॉइंटमेंट लेके आ रही थी। सो शी हैज नॉट रियली मेंशन क्या था, बट उन्होंने फिर उसके बाद ये कहा कि देखो मैं परेशान क्यों होती हूँ, हर बार वो चीज आ रही है, हर बार मैं लो फील करना शुरू कर देती हूँ। ऐसा तो नहीं है, ब्रह्मांड की शक्तियां, भगवान तो एक ही है, भगवान तो अलग अलग होते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भगवान की पावर तो मेरे अंदर है, इसका मतलब मेरे अंदर पावर है। तो उन्होंने उसी सिचुएशन को, जो चीज उनको पुल डाउन करती थी, उसके लिए उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया दैट दिस थिंग, जब भी ये चीज होती है तो ये हैप्पी सरप्राइज लेके आती है मेरी जिंदगी में, है ना। मतलब वेन एवर दैट थिंग, जो डिसअपॉइंटिंग थिंग जो उनकी जिंदगी में जब भी होती तो कहती थी इसका मतलब है इट्स टाइम फॉर अ हैप्पी सरप्राइज। एंड शी सेड दैट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस, ये जब बार बार होता है तो ये बार बार मेरे लिए हैप्पी सरप्राइज लेके आ रहा है। उन्होंने अपने दिमाग में ये वाली बिलीव घुसा ली बाय कॉन्स्टेंटली यूजिंग दिस वर्ड हैप्पी सरप्राइज, दैट दिस थिंग मीन्स अ हैप्पी सरप्राइज। मतलब वो नेगेटिव इंसिडेंस जो बार बार हो रहा था, दैट मीन्स अ हैप्पी सरप्राइज। अब हैप्पी सरप्राइज, हैप्पी सरप्राइज, हैप्पी सरप्राइज, ऐसे वर्ड्स को सबकॉन्शियस माइंड बहुत आसानी से कैप्चर करता है और उसको सीमेंट करके सॉलिडिफाई कर लेता है। अब उनकी जिंदगी से जो जिस चीज को लेके वो बहुत दुखी हो जाती थी, उन्होंने उसके मायने ही बदल दिए। नाउ दैट स्टार्टेड मीनिंग एज अ हैप्पी सरप्राइज, and then she noticed a change at once. फ्लोरेंस कॉवल्शन, वो जब बाद में वही चीज दोबारा से होने लगी, अब वो उनके लिए लिटरली हैप्पी सरप्राइज लेके आने लगी, एंड शी नोटिस्ड अ चेंज एट वंस एंड हैप्पी सरप्राइजेस कमेंस्ड कमिंग माय वे, है ना। और उनके पास हैप्पी सरप्राइजेस आने लगी। तो कितना अच्छा ये एनेक्डोट है हमको ये बताने के लिए कि कोई भी चीज अगर हमको अपने एनवायरनमेंट में बॉदर करती है ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई पर्टिकुलर रिश्ता हो, चाहे वो हेल्थ हो, इसका मतलब होता है ग्रेट ग्रोथ एंड हैप्पी सरप्राइज इज कमिंग। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को इस चीज का विश्वास दिला दोगे तो नाउ योर लाइफ विल बिकम लाइक दैट, है ना। दिस थिंग मीन्स हैप्पी सरप्राइज, ओ दैट पर्सन इज येलिंग एट मी, हैप्पी सरप्राइज, दैट वे, है ना। ये ऐसा हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया, नो नो नो, दिस मीन्स हैप्पी सरप्राइज। अब वो हैप्पी सरप्राइज वाला वर्ड कैप्चर होके अब आपकी जिंदगी में ओवरफ्लो ऑफ हैप्पी सरप्राइजेस होने लग जाएंगी। तो ये उन्होंने अपने आप को यकीन दिला दिया था। तो अब वो अपनी पावर को समझ गई थी, तो उसमें यही समझा रही है कि देयर आर नो टू पावर्स, देयर इज ओनली वन पावर, आई एम द पावर टू क्रिएट एनीथिंग इन माई लाइफ, है ना। इस बात का विश्वास दिला के आई एम द पावर टू क्रिएट माई डेस्टिनी, आई हैव दैट पावर, आई हैव एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू बिकम सुपर सक्सेसफुल एंड सुपर हेल्दी, I have everything in my body, in my life to become like that. I will do it. I know I can do it. For me, it is very easy to become successful. For me, it is very simple. It is very, very easy for me to become like that or to have my business with so many grow turnover. It's very easy for me. Keep telling yourself that. तो इस चैप्टर का नाम ही तो ये है, शब्दों की ताकत हिंदी में, है ना, पावर ऑफ द वर्ड।
शब्दों की ताकत से आप अपने सबकॉन्शियस को किसी भी बात के लिए यकीन दिला सकते हो, और जिस चीज के लिए आपने यकीन दिलाया वो आपकी जिंदगी हो जाती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन है वही तो आपकी किस्मत होती है। तो इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में आप ऑल्टरेशंस करके तो आप किस्मत को ऑल्टर कर दो, आपको जैसी बनानी है बनाओ, एंजॉय करो। जैसे अभी रितु जी ने कितनी ब्यूटीफुली बोला है, आई रोल इन द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, और आई एम रोलिंग इन द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। और बहुत पहले हमने इनको बताया था, हमको पता नहीं कि ये उनकी जिंदगी का परमानेंट टैटू हो गया है ना। और जिंदगी ऐसी होती जाएगी, यूनिवर्स विल लुक फॉर ऑप्शंस हाउ टू मेक योर लाइफ एंड हाउ टू मेक यू रोल इन सेलिब्रेशन मोर एंड मोर एवरी डे, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। Yes. Yes, bye bye, Thank thank you you. so Thank much. you.